हेलो। Hello, sir. हाँ Am I audible now? हाँ, यस यस यू आर। Good afternoon, sir. I have logged in सॉरी in another device. सॉरी। I have logged in through my. I have logged in through my laptop or laptop. वो connection जाता है ना बीच बीच में. तो और एक ही फिर चालू रख, या तो लैपटॉप पे या तो इस पे। डोंट कनेक्ट थ्रू टू डिवाइसेस। हाँ. या तो लैपटॉप पे से रहे या तो फोन Okay, पे रहे, okay. तो मैं एक को रिमूव कर देता हूँ फिर। Okay. I am leaving my from my phone. ठीक है, चलेगा। हेलो। Hello. ओके। I sent you the images that day यस यस आई नो yesterday. आई। यस आई नो। ओके, so to proceed ahead, let us start with let us first understand what do we mean by profits prior to incorporation. ठीक है। A and B are promoters of the company. I hope you understand what are promoter. Who are promoters? They are the one who promote the company. Okay, the initial founders of the company, they are called as promoters. A and B are promoters. Sir, wait a minute. Hmm. थोड़ा ना एक इशू है. You can keep your video on today. We'll get to know if you are understanding the concept. Okay? I may be able to judge you better that you are with me. Hello. Hello, sir. Yes. हेलो. हाँ, वी विल स्टार्ट नाउ. अभी ठीक है. Okay, चलो. So A and B are promoters of the company and they want to start a business. So they have two options. Either start it, either start a new business, or they have another option that they can take over an existing business. Or rather, instead of writing take over, I will write purchase an existing business. ठीक है? So ओके. they have two options, correct? Either start हम्म. a new business or purchase an existing business. ठीक है? यस. So they approach Mr. C. They approach Mr. C, who runs a business
who runs a business uh, on his own, rather who runs a business under sole proprietorship. ठीक है? Hmm. So now Mr. A and B will purchase the business from Mr. C. ठीक है? Mr. C wants to sell his business कि कोई आके मेरा business ले जाए तो मैं रिटायर हो जाऊं. तो मिस्टर ए एंड बी दे आर द प्रोमोटर्स ऑफ द कंपनी. ओके, तो वो लोग ने एक बिजनेस खरीद लिया. तो अभी होता क्या है, आई एम अज्यूमिंग दैट माय फाइनेंशियल ईयर इज माय कैलेंडर ईयर. तो फाइनेंशियल ईयर एंड्स ऑन 31st December December. 2022. ठीक है? Hmm. तो अभी हमारे एग्जाम्पल में क्या होता है, दे परचेज द बिजनेस ऑन 1st January 2022. ठीक है? अभी कंपनी फॉर्म करनी होती है ना, ए एंड बी वांट टू फॉर्म अ कंपनी. तो वो लोग को अगर कोई कंपनी फॉर्म करनी होती है तो वो लोग को पेपर वर्क करना होता है. दे हैव टू गेट द कंपनी रजिस्टर्ड अंडर द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज. आरओसी के बहुत सारे कंप्लायंसेस होते हैं, उसमें टाइम लगता है. तो ये लोग ने 1st January को पेपर फाइल कर दिया, बट दे गॉट देयर सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, रादर सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस. ठीक है? they got their certificate of commencement of business on 1st April 2022. ठीक है? समझ में आ रहा है? बट अभी मेरा तो ईयर एंड क्या है, Yes. फाइनेंशियल ईयर एंड्स ऑन, my financial year ends on 31st December 2022. So we can say that the company was actually formed on 1st April. मतलब कि जो बिजनेस है वो सोल प्रोप्राइटरशिप में ही चल रहा था. Rather, if I change, they purchased the business on 1st January, correct? सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस कब मिला? ये एक डॉक्यूमेंट रहता है जो आरओसी हमको इशू करता है. ठीक है? ये डॉक्यूमेंट जो है आरओसी हमको इशू करता है. तो वो कब मिला? 1st April. मतलब बोलूं कि कंपनी एक्चुअली फॉर्म हुई 1st April को और फाइनेंशियल ईयर 31st December पे एंड होता है. तो अभी यहाँ पे है ना, दो सिनेरियो होता है. एक तो देख, बिजनेस तो चल ही रहा है, ऐसा नहीं है कि बिजनेस 1st April से स्टार्ट हुआ. बिजनेस तो अपना 1st January से स्टार्ट हुआ. तो इसमें क्या हो रहा है कि दे परचेज द बिजनेस ऑन 1st January. तो देर आर टू प्रॉफिट्स फ्रॉम 1st January 2022 टू 31st March 2022. और दूसरा Yes. प्रॉफिट्स फ्रॉम 1st April 2022 टू 31st December 2022. 2022. तो अभी मेरा कंपनी तो एक्चुअल में फॉर्म हुआ 1st April 2022 को, करेक्ट? तो Yes. बोलूं कि ये पीरियड में 1st January से 31st March के पीरियड में ए बी लिमिटेड कंपनी एग्जिस्टेंस में नहीं था. Was AB Limited in existence? No. Hmm. AB Limited came into existence No. on 1st April. It came into existence on 1st April. So Bolu, this is First my April. profit prior to incorporation. Why? Because my company was incorporated. My company was incorporated on 1st April. But 1st Jan से हमने तो consideration pay कर दिया था. किसको? मिस्टर सी को, कि हम आपका बिजनेस परचेज कर रहे हैं, दिस इज अवर कंसिडरेशन, करेक्ट? तो कंसिडरेशन तो पे कर दिया था. तो जो भी प्रॉफिट रहेगा 1st Jan से 31st March 2022 विल बी योर प्रॉफिट प्रायर टू Prior इनकॉर्पोरेशन incorporation. एंड दिस हेंस विल बी योर कैपिटल प्रॉफिट. ठीक है?
This is your हम्म normal profit, हम्म and it will be your revenue profit. ठीक है? ओके हाँ Okay, so I hope you understand the difference between capital profit and revenue profit. Correct? ये तो सब why we are calling it capital profit means revenue profit तो समझा पर capital profit term क्यों दिया है इस profit को कैपिटल प्रॉफिट टर्म इसीलिए दिया क्योंकि रोज तो हम किसी का बिजनेस खरीदने नहीं जाएंगे, और रोज ऐसा सिचुएशन तो नहीं होने वाला है कि हम लोग को प्रायर टू मीन्स इट हैपेंस वंस इन अ वाइल, हर रोज रेगुलरली नहीं होता ये। और हम्म ये किसी और का प्रॉफिट है, मतलब किसी और का तो नहीं बोल सकते, एक्चुअली देखे तो ए एंड बी का ही है, बट दिस इज नॉट द प्रॉफिट विच इज अर्नड बाय ए बी लिमिटेड। कंपनी ने अर्न नहीं किया, किसी और का प्रॉफिट हमको मिला है, एक्चुअली हमारा ही है बट हमारा कंपनी फॉर्म नहीं हुआ था। इन ओके शॉर्ट अगर मैं एक ही वर्ड में समराइज करूं, दिस इज नॉन रिकरिंग नेचर, नॉन रिकरिंग नेचर है। ठीक है, ये जो होते हैं नॉन रिकरिंग है, करेक्ट? तो जो भी नॉन रिकरिंग करेक्ट होते हैं दैट विल बी योर कैपिटल प्रॉफिट। ठीक है, ओके ओके। सो अभी यहाँ पे पूरे चैप्टर में दो रेशियो इंपॉर्टेंट है, रादर सिर्फ दो मेजर रेशियो की बात करूँ तो दैट इज टाइम रेशियो एंड सेल्स रेशियो। सेल्स रेशियो हाँ ठीक है, ये चैप्टर में आप लोग को क्या करना होगा, पीएनएल का डिटेल्स दिया रहेगा। ठीक है, एक पूरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया रहेगा, नेट प्रॉफिट फाइंड करके वो लोग हमको बोलेंगे कि आप इसको एलोकेट करो इन प्री एक्विजिशन पीरियड एंड पोस्ट एक्विजिशन पीरियड में। So there must be some suitable ratio on the basis of which you can distribute the amount allocate the amount between pre and post acquisition. Correct? यस There should be some suitable basis, no? On the basis of suitable ratio, on the basis of which you will be allocating the amount between in the periods pre acquisition and post acquisition. Correct? So one of the ratio is time ratio. Second is sales ratio. Time ratio, I will tell you how do we arrive at time ratio, but sales ratio, the follow the instruction given in the problem. Follow the instructions given in the problem. For time ratio, I am showing it to you. ठीक है, time ratio एक ही standard method रहेगा. There is no other method. ठीक है, मैं यहाँ पे बोलूँ business purchased on, when did we purchase the business? फर्स्ट जनवरी 2022 1st January 2022. ठीक है, and when did we get our certificate of commencement? फर्स्ट अप्रैल of 22 Rather, I will write commencement of business only. ठीक है, commencement of business. Okay, the date is 1st April 2022 2022. Okay, and when does my financial year end? 31st of December 2022 31st of December 2022. Now, if you see 1st Jan से 1st April 3 months आते हैं, हाँ correct? There are 3 months, yes January, February and March. and अप्रैल March को नहीं गिनूंगा मैं, अप्रैल को नहीं लूंगा because it is 1st April. Let's not April end. And 1st April से 31st December will be 9 months. ठीक है, तो अगर देखे तो मेरा टाइम रेशियो क्या निकलता है, टाइम रेशियो इज 3 is to 9 is to 9 in our example. ठीक है, yes हाँ तो what will be given in the problem? What will be given in the problem? ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, हाँ
what is to be done in the problem, what we have to do. ठीक है? हाँ. Make profit and loss account, rather make columnar profit and loss account showing Hmm. bifurcation of the incomes and expenses between pre and Post post incorporation. incorporation period. Correct? Yes. So, profit of pre incorporation period. Can you mute, please? Profit of pre incorporation period is my profit prior to incorporation, which will be my capital profit. Okay, and profit of post incorporation, it will be my normal profit or loss, revenue profit. Correct? Okay, Yes. चलो ठीक है. Now see, there are some expenses which will require application of bit of common sense. So I'm not rather giving you a list. I'm just discussing it right now. See, there are certain expenses which depend on particular thing, like carriage inward. Carriage inward. So here I will write चलो list दे ही देते particulars. ठीक है? Now Yes. what we are doing is we are discussing one item at a time, and we are deciding the basis of its allocation. Like on what basis we are going to allocate the amount between pre-incorporation and post-incorporation. Okay? So Hmm. particulars and basis of allocation. If we talk about carriage inward, these are the expenses which I incur at the time of making purchases. Correct? Yes. Okay, does it remain fixed over a period of time? कि 1 month का इतना ही होगा? No. No. Sometimes in January month you will be having purchases, in February month you won't be having purchases because you are having enough inventory. Correct? So Hmm. carriage inward Correct. basis of allocation would be purchase ratio. Okay? Hmm. Basis of allocation would be purchase ratio. But Next one, carriage outward. Okay, when do we incur carriage outward? when we means when we send anything out, delivery और वो सब रहता है उसके time. तो बोल दो सेल्स रेशियो में जाएगा ही. Hmm. ठीक है. नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ ऑफिस रेंट We अपन are बोल सकते. we are सॉरी. यहाँ पे जो सेल्स रेशियो यहाँ पे जो सेल्स रेशियो पे हम एलोकेट कर रहे हैं ना, हम्म. उसकी वजह ये है क्योंकि वो जो डिलीवरी करते हैं वो पर्टिकुलर सेल्स मतलब जितना हम्म. सेल करते हैं उतना ही हम डिलीवरी करते हैं, यस. इसलिए वो यस. सेल्स रेशियो पे Yes, एलोकेट होता है. because carriage outward is related to your sales only. When you do हम्म. sales, at that time only you incur carriage outward. Correct? So we करेक्ट. can यस. say that your carriage outward are related to your sales only. Now, if we talk of office rent, okay. See, office rent is something हाँ. which you have to pay every month. Correct? हम्म. So can या. we say that this can be done on the basis of time ratio? देखेंगे. अभी समझो हमारे एग्जाम्पल में टाइम रेशियो was 3:9. Okay, and हम्म. we say that annual rent was 1,20,000. So 1,20,000 will be
एलोकेटेड बिटवीन प्री एंड पोस्ट इन द रेशियो 3:9। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्री के लिए 1,20,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 9। ठीक है, हम्म, और सॉरी 9 नहीं 12 हो जाएगा, 3/12। और हाँ इधर 1,20,000 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 12 हो जाएगा। 12, हाँ तो ऑफिस रेंट हमने किस पे किया, टाइम रेशियो। अच्छा, डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन ऑल्सो टाइम रेशियो। परफेक्ट, क्योंकि मंथ के हिसाब से पता कर पाएंगे अपन कि कौन सा असेट कितने मंथ के लिए किधर यूज हुआ, अकॉर्डिंगली डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। हाँ ठीक है, सी आई एम नॉट गिविंग यू एन एग्जॉस्टिव लिस्ट। ठीक है, दिस इज नॉट एन एग्जॉस्टिव लिस्ट। ठीक है, ऐसे बहुत सारे इंडिविजुअल आइटम है ठीक जहाँ पे हमको ये करना होगा, थोड़ा कॉमन सेंस लगाने होगा। तो आई वोंट बी गिविंग यू एग्जॉस्टिव लिस्ट, आई एम जस्ट गिविंग यू एन इंक्लूसिव लिस्ट। ठीक है, बैड डेट्स, अभी बैड डेट्स को किस में ओके। हम करेंगे, बैड डेट्स को किस में हम करेंगे। बैड सी, बैड डेट्स टाइम कब होता रेशियो। है, जब हमने, नहीं टाइम रेशियो पे नहीं, नहीं नहीं, ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि हर मंथ अपन बैड डेट्स खरीदते जाते हैं, हर मंथ बोलेंगे कस्टमर को बैड डेट्स करो, बैड डेट्स करो। नहीं, ठीक है। अभी नहीं नहीं बैड नहीं। डेट्स कब होता है, बैड डेट्स हाँ कब होता है, जब हम सेल करते हैं, क्रेडिट सेल करते हैं, करेक्ट। हाँ तो तो जिधर क्रेडिट सेल ज्यादा उधर बैड डेट्स ज्यादा, तो बोलो बैड डेट्स को हम सेल्स रेशियो में कर देंगे। या ठीक है, दूसरा आता है ऑडिट फीस। यस। ऑडिट फीस, अभी ऑडिट तो कंपनी में ही होता है, ठीक है, कंपनी में ही होता है। तो ये तो प्री इनकॉर्पोरेशन में ही जाएगा, पूरा का पूरा पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में जाएगा। ठीक है, ऑडिट हाँ फीस। ओके, फिर हमने एक डिबेंचर्स इशू किया, कंपनी फॉर्म होने के बाद डिबेंचर्स इशू किया, तो उसके ऊपर इंटरेस्ट पे किया, तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। ये बोलूं, ये तो कंपनी फॉर्म करने के बाद हुआ ना, कंपनी फॉर्म करने के बाद हुआ ना, पहले कहाँ डिबेंचर्स थे। सोल प्रोपराइटर कभी डिबेंचर्स इशू करते हैं क्या, नहीं, कौन करता है डिबेंचर्स इशू, कंपनी करती है, करेक्ट। तो इसके ऊपर कंपनी इंटरेस्ट पे हाँ। किया, तो ये भी पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में जाएगा। फिर नेक्स्ट आता है डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन। हम्म, अच्छा, तू मुझे बता, डायरेक्टर सोल प्रोपराइटर में होते हैं, सोल प्रोपराइटर फर्म में होते हैं कि फिर कंपनीज में होते हैं। कंपनी इट्स इन तो पूरा का कंपनी। पूरा कहाँ जाएगा, हाँ पूरा का पूरा कहाँ जाएगा, पोस्ट पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन, पोस्ट ओके, इनकॉर्पोरेशन हाँ। ओके। अभी एक चीज समझ मेरी, मैं जो बोलना चाह रहा हूँ ध्यान से समझ। ए एंड बी जो है अपने प्रोमोटर है, और ये प्रोमोटर लोग ने क्या किया था, बिजनेस खरीदा था मिस्टर सी से। ठीक है, तो अभी ये केस में ए एंड बी क्या करेंगे, ए एंड बी क्या करेंगे, वो लोग को कुछ अमाउंट पे करना होगा मिस्टर सी को, बिकॉज दे हैव परचेज द बिजनेस, तो सामने कुछ कंसिडरेशन भी तो देना होगा। तो एज पर द हम्म, एग्रीमेंट, कई बार क्या होता है, व्हाट हैपेंस इज दैट एज पर द एग्रीमेंट they state that if you pay us the consideration after the agreed date or time, then we will be charging you some interest. So in that case, it would be called as interest to vendor. Interest to vendor. वेंडर। See, एक सर डेट एंड वी डिसाइड हो कैन गया था। कॉल इट इंटरेस्ट ऑन परचेज कंसिडरेशन भी बोल सकते हैं ना इसे। Yes, 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 yes. But generally they would be using the word interest to vendor. ठीक है, ये वर्ड से ही आएगा हाँ मोस्टली। भी क्योंकि इंटरेस्ट टू टेक्स्ट बुक वेंडर, में ना ऐसे टाइप दिया था। हाँ चलेगा। हाँ वो बट इंटरेस्ट ऑन वेंडर की, इंटरेस्ट टू वेंडर की परचेज कंसिडरेशन कुछ भी चलेगा। तो ये तो एक्चुअल ओके। बेसिस पे ही होगा, एक्चुअल बेसिस पे होगा, जब पे किया हम बाइफरकेट कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, हमारा रेशियो क्या था, टाइम रेशियो, आवर टाइम रेशियो वॉज 3:9, करेक्ट। हाँ टाइम रेशियो क्या था, टाइम रेशियो 3:9। इट वॉज 3:9, करेक्ट। नाउ व्हाट हैपेंस इज हम्म कि consideration was paid to the vendor, consideration paid to vendor on, मैं अलग डेट लेता हूँ, 1 अगस्त 2022,
ठीक है, कंटिन्यूइंग अवर अबव एग्जाम्पल. ओके, कंसिडरेशन अमाउंट वॉज रुपीज. मैं जस्ट सिंपल अमाउंट ले रहा हूँ फॉर अवर अंडरस्टैंडिंग. 1 लाख एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट वॉज 10% पर एनम. ठीक है, तो पहले तो इंटरेस्ट ऑन कंसिडरेशन फाइंड करेंगे. इंटरेस्ट अमाउंट बोलो, इट विल बी 1 लाख इंटू हम्म 10% और मल्टीप्लाइड बाई पूरा 12 मंथ्स का थोड़ी ना हमने किया, हमने तो 1 अगस्त को पे कर दिया. तो सो नाउ लेट अस काउंट द नंबर ऑफ मंथ फ्रॉम जैन टू जुलाई. जनवरी, फेब्रुवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई. 7 मंथ्स, तो 7/12 हो जाएगा. हम्म ठीक है, अगर मैं इसको थोड़ा है ना, यस नहीं मैं चेंज करता हूँ, रेट चेंज करता हूँ तो कैलकुलेशन समझ में आएगा आपको. जस्ट अ मिनट. ठीक है, मैंने अमाउंट चेंज कर दिया. सो दिस इज द टोटल इंटरेस्ट विच वी पेड टू द वेंडर. अभी इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे बिटवीन प्री एंड पोस्ट. अभी हम देखेंगे कि मेरे प्री में तो 3 मंथ्स आ रहा है ना, हाँ और पोस्ट में कितने मंथ्स आ रहे हैं बाकी के. तो 3 मंथ्स इधर 9 आ गए प्री में. नहीं, पूरे 9 थोड़ी ना. सॉरी 9 नहीं आई थी पूरा हमने कभी 1 अगस्त जितना को पे किया 1 ना. अगस्त 4 मंथ्स. हाँ 1 अगस्त तक ही आएगा 4 पक्का. मंथ्स यस तो अभी 7,000 तो हाँ 7 मंथ्स का है, तो 3 मंथ्स का 3,000 हो हम्म जाएगा. और सिमिलरली हम्म 4 मंथ्स का 4,000 हो जाएगा. इसको बोलते हैं हम्म एक्चुअल. कि जो एक्चुअल रहेगा वैसे कर देंगे. अभी ये चेंज होते रहेगा, इसलिए आई हैव रिटन द वर्ड एक्चुअल ओवर देयर. ठीक है. ओके ठीक है, तो दिस इज नॉट एन एग्जॉस्टिव लिस्ट. आई जस्ट वांटेड टू गिव यू वन मोर थिंग वी कैन ऐड. और ग्रॉस ऐसा प्रॉफिट. ऐसा कौन सा और एक आइटम है जो एक्चुअल पे आता है व्हाट वी कैन. और एक ऐसा, कौन सा आइटम है जो एक्चुअल बेसिस पे हम बाइफरकेट करते हैं वो यही हो गया, ऑडिट फीस भी एक्चुअली हो गया. क्योंकि ऐसे कोई एक्सपेंसेस, अभी समझ, ऐसे कोई एक्सपेंसेस जो हमने दोनों भी पीरियड में इंकर किए हो. लाइक समझो ना, हम्म एम्प्लॉयज, एम्प्लॉय, जो एम्प्लॉय तभी थे, जो एम्प्लॉय अपने तभी थे किधर, प्री इनकॉर्पोरेशन में थे, वो सेम एम्प्लॉय अभी काम कर रहे हैं कंपनी फॉर्म होने के बाद भी. वो लोग बोले कि हमको कंपनी चेंज नहीं करना, वी वांट टू वर्क विथ यू ओनली. तो वो एम्प्लॉय प्री में भी थे, पोस्ट में भी थे, तो इसको एक्चुअल में हम्म डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, है ना. हम्म हम्म हाँ, तो अभी ऐसे ही बहुत सारे एक्सपेंसेस. आई एम नॉट राइटिंग ईच एंड एवरी आइटम. अभी देखेंगे लाइक इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस. इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस ये भी टाइम रेशियो में होगा. एवरी मंथ बिल आएगा, हम्म उसको डिवाइड कर देंगे हम्म कि प्री में इतना, पोस्ट में इतना. ठीक है, तो एंड द लिस्ट गोज ऑन. ठीक है, सो देयर इज नेवर एन हम्म एंड टू दिस लिस्ट. तो व्हाट वी कैन डू इज, वी जस्ट हैव टू सी कि ये ट्रांजैक्शन कैसा है. अगर ये रेंट है, डेप्रिसिएशन है, तो ये किस में हो जाएगा, टाइम रेशियो में. टाइम रेशियो ठीक है, हम्म सैलरी है, सैलरी भी हम टाइम रेशियो या तो एक्चुअल में कर देंगे कि कौन से मंथ किधर पे किया वैसा. ठीक है, सैलरी भी अपना टाइम रेशियो में हो जाएगा. बैड डेट्स है तो हम देखेंगे कि हाँ बैड डेट्स कब होता है, क्रेडिट सेल करेंगे तो इसको सेल्स रेशियो में कर देंगे. एंड वन मोर थिंग, ग्रॉस प्रॉफिट. ग्रॉस प्रॉफिट पे बोलूँ, हम सेल्स करेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट कमाएंगे. हाँ तो ग्रॉस प्रॉफिट को सेल्स रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. जिधर ज्यादा हम्म सेल्स उधर ज्यादा ग्रॉस प्रॉफिट, जिधर कम सेल्स उधर कम ग्रॉस प्रॉफिट. ओके, यस so what हम्म we can do is just a minute. सर अभी एक ट्रिक बताओ ना मतलब मुझे ना टाइम रेशियो और एक्चुअल में थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है मतलब कैसे वो अप्लाई टाइम करने का रेशियो देख, बाइफर टाइम रेशियो और एक्चुअल रेशियो कैसे डिपेंड करेगा. इफ एनी पर्टिकुलर एक्सपेंस इज देयर फॉर 12 मंथ्स. फॉर एग्जाम्पल अपना ऑफिस रेंट, हम्म ऑफिस रेंट ये तो 12 के 12 मंथ्स पे करने वाले. करेक्ट. हम्म तो ये मेरा टाइम रेशियो हाँ हो जाएगा. अभी
मुझे पता चलता है कि मैं अपना तो 1 जन से स्टार्ट हुआ था बिजनेस, ये एग्जांपल मैं आता हूँ मैं किधर, यहाँ पे बिजनेस वॉज परचेज ऑन 1 जनवरी, वी कमेंस द बिजनेस ऑन 1 अप्रैल। तभी एक एम्प्लॉय बोलता है 1 अगस्त को आके एम्प्लॉय बोलता है कि सर आई वांट टू डिसकंटिन्यू विथ यू, आई हैव गॉट अनदर जॉब। तो हमने उसको सैलरी 31 जुलाई तक पे किया था। 31st, हाँ उतना ही देंगे, राइट? ही इज हाँ तो 31 डिसकंटिन्यूइंग। जुलाई तक, हाँ तो अभी ये एक्चुअल बेसिस पे कर देंगे। तो पहले तो 3 मंथ्स जो है 1 जन से लेके 1 अप्रैल, ये तो प्री में ही जाने वाला है। और 1 अप्रैल से 31 जुलाई ये तेरा पोस्ट में जाएगा, क्योंकि ये एक्चुअल हो गया अभी। पोस्ट में जाए। ठीक है, तो ये तेरा हम्म। एक्चुअल में जाएगा। एक बार एक प्रॉब्लम करेंगे ना अपन, ओके। लेट अस सॉल्व अ प्रॉब्लम ऑन दिस, तो यू विल गेट इट बेटर, यू विल गेट अ बेटर हम्म। अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो विद दिस वी ओके। कंक्लूड विथ आवर फर्स्ट पार्ट। ठीक है, तो इन द नेक्स्ट पार्ट वी हाँ। विल सी हाउ टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। ठीक है, so what we do is, let us now connect. Chalo, so what we do is we exit and rejoin, where we will हाँ। see what we can do, what we have to do in particular sum. Chalo. ओके।